I think the biggest thing was that I knew that prelims is difficult. Yeah. Now what I learned is that plans कभी बनते हैं नहीं, plans कभी follow होते हैं नहीं. एक तो मेरे साथ क्या था that उस prelims के 2 या 3 हफ्ते पहले एक mock test में मेरे सिर्फ 70 मार्क्स आए थे, तो बहुत मुझे पैनिक इंड्यूस हो गया था. एंड उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देना ही छोड़ दिया, इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी. इफ आई हैव केप्ट अ प्लान फॉर मी दैट 50 टेस्ट दूंगा, या तो मुझे लगता था दैट प्लान इज टू मच, फॉलो ही नहीं हो रहा है, या मुझे लगता था प्लान इज टू लिटिल, इतना सफिशिएंट नहीं. इसके अलावा नेचुरली पीवाईक्यूज तो करनी ही है. लास्ट 4 to 5 वीक्स में काफी मैंने एम्फसाइज भी किया था. आई यूज्ड टू लिटरली टेल माय सेल्फ दैट एंजाइटी बाद के लिए है, अभी एग्जाम हॉल में फोकस करना है एग्जाम. दिस इज समथिंग आई ऑलवेज टेल पीपल दैट पढ़ रहे हो तो पहले एग्जाम को समझो, gain clarity about the kind of questions that are being asked and the kind of answers you're supposed to write. Hello everyone, and welcome to another episode of Topper Talks. And today we have with us Ayan Jain, who secured AR 16 in Civil Services Exam 2023. Welcome. How are you? Thank you, sir. Good, sir. क्या चल रहा है पिछले 1 महीने से? कुछ नहीं सर, टाइम पास, सिटकॉम्स, टीवी सीरीज. And a lot of Topper Talks. Yes, sir. So before we go any further, I would like to point out that Ayan was associated with us only for the PT 22 and 23 programs, wherein he came in for interview guidance. Classes इनकी इन्होंने अलग इंस्टीट्यूट से ली हैं and will come into that in the course of the discussion. तो बेसिक से शुरू करते हैं. And you've always been sort of a good student, right? तो this was your third attempt at civil services exam. Yes, sir. First attempt में क्या हुआ था? Prelims नहीं हुआ था सर, missed it by around 4 marks. मतलब how did you feel about that? So to some extent, I already knew that prelims is quite difficult, and a lot of my seniors had not cleared it in the first attempt. So बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा, but still I think थोड़ा शॉक तो लगता है that इतनी मेहनत कर रहे हो and फिर भी first stage ही ना clear हो. So I think I was able to come back fairly early. Within next 1 or 2 days itself, I started studying with renewed motivation. I think that was the good part. You मतलब were somebody who has a 9.8, 9.9 CGPA, right? Yes. So see, मतलब that is something very unfathomable for me. क्योंकि I've been a 5-pointer in my college life. तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा chill किया है. And when you switch to a different mode, when you're getting into UPSC and then you face failure, so like for me it was still fine because I knew कि हाँ मतलब might take some time. Like you had not faced a setback before that prelims in the last 6, 7, 8 years before it. Sir, I would not say that. Sir, minor setbacks तो होते ही रहते हैं, चाहे कॉलेज के एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो ऐसा भी नहीं है. And again, I think the biggest thing was that I knew that prelims is difficult. My own elder brother, he was not able to clear in the first attempt. So इतना idea था that difficult है, कई लोगों का despite their best efforts नहीं होता है. I think that is what prevented me from being very disappointed with the outcome. Your brother is in service? Yes, sir. He's 21 batch. Okay, 21 batch IAS officer. And Yes. उनकी क्या रैंक थी? उनकी भी 16 रैंक थी सर. Lovely. And sort of how many attempts did it take him to clear? He cleared in his second attempt, sir. Okay, so मतलब I think second attempt में you also got a rank of 87. Yes. And third attempt में you're here at a rank 16. So definitely I think you and your brother have figured something out. What goes into this exam. So let's drill down into it. Number one, what were the things that you gained directly from maybe observing your brother? Not something that he told you explicitly, but something that you observed that was being done. So I think the biggest thing I've seen is extreme amount of discipline. उनका तो ऐसा होता था that even everything in his schedule was fixed. कितने बजे टेस्ट देना है, रोज एक टेस्ट आई थिंक वो देता ही था for prelims. Even though I didn't imitate it, but I learned that discipline का काफी रोल तो रहा है, which I noticed in his second attempt, which was not there in his first. And बाकी I think वही पढ़ते जाना है. It's ऐसा भी नहीं है कि लोग जो टॉपर्स हैं कुछ बहुत डिफरेंट करते हैं. It's just the minor things I think. The invisible things are more important I feel. कि पढ़ भी रहे हैं, लक्ष्मीकांत भी अगर पढ़ रहे हैं तो एग्जाम की जो क्लैरिटी होती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह से मुझे पढ़ना है, ये इनविजिबल चीज आई थिंक काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस बना देती है. Even in revising, how a person is revising, that I think makes a bigger difference than what they're revising or how many times they are revising. So मतलब please elaborate on that कि मतलब किस तरीके से पढ़ रहे हैं and किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं.
So sir, I this is something I always tell people that पढ़ रहे हो तो पहले एग्जाम को समझो. Gain clarity about the kind of questions that are being asked and the kind of answers you're supposed to write. इसके लिए previous year questions and topper copies. Prelims के लिए सिर्फ previous year questions है, but mains के लिए topper copies also. One thing, for example, that comes out of it is that current affairs में I suggest people to do a more horizontal cover. Number of topics ज़्यादा cover करो, but बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ. हर कोचिंग मैगजीन में ये इशू होता है दैट दे ट्राई टू कवर एवरी टॉपिक टू द माइन्यूटेस्ट लेवल. एंड इसका रीजन इज अंडरस्टैंडेबल दैट कोचिंग्स नहीं चाहती कि ऐसा हो टॉपिक कवर किया बट फैक्ट्स बहुत कम कवर किए. बट आई थिंक वी एज एस्पिरेंट्स और पीपल गिविंग द एग्जाम हैव टू बी मोर सेलेक्टिव. एंड ये क्लैरिटी पीवाईक्यूज के थ्रू आती है एंड ओवर टाइम आती है. फिर आई थिंक बहुत एफिशिएंसी आ जाती है. इवन इफ आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू रीड. व्हेन आई एम मेकिंग नोट्स आई नो एग्जैक्टली हाउ मच टू राइट. नॉट डेफिनेटली नॉट एग्जैक्टली बट काफी उससे टाइम सेव होता है. रिविजन में भी फिर बहुत हेल्प होती है. व्हेन आई कम टू मेंस, आई थिंक मेंस में बात करें तो मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस इज व्हाट टॉट मी नंबर वन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक एंड नंबर टू द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग पॉइंट फॉर्म टॉपिक वाइज नोट्स एंड रिवाइजिंग देम. अगेन आंसर राइटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा था, I saw a greater improvement in my answers when I focused a lot more on revision. Again, point wise from topics of the syllabus. So let's say GS3 में agriculture है, marketing अलग topic है, storage अलग है, transport अलग है. इन तीनों के notes होने चाहिए आपके पास. Because actual exam में भी ये बहुत clearly दिख रहा है from the last many years, direct questions are coming. And topic wise notes जब होते हैं, तो you can directly replicate what is there in your notes in the actual exam. Personally, this is what I have found to help me the most. This is what I think of as having clarity about how to prepare for the exam. Again, मेंस में भी करंट अफेयर्स की बात करें तो मेरा क्योंकि मैथ्स ऑप्शनल था तो बहुत ज्यादा आई कुड नॉट गिव टाइम टू इट फॉर मेंस. बट व्हाट आई डिड इज आई कवर्ड द मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. फॉर द लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई हैड द कॉन्फिडेंस दैट स्टैटिक क्योंकि स्ट्रांग है तो स्टैटिक के टॉपिक से कोरिलेटेड करंट अफेयर्स को मैं हैंडल कर पाऊंगा. बिकॉज आई हैव सीन दैट एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एक्सेप्शनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मोस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसी ना किसी सिलेबस टॉपिक से कोरिलेट करते हैं. तो वो स्ट्रांग होने पे कुछ ना कुछ तो लिख ही पाते हैं एक्चुअल एग्जाम. सो मतलब ऑप्शनल की जैसे अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल अ लॉट ऑफ पीपल choose for the simple reason that they feel कि it's objective. Should that be the criteria for choosing mathematics? Like who should go for mathematics as an optional? सर इट्स आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल. ऑब्जेक्टिविटी के साथ स्टेबिलिटी भी आती है मार्किंग की. ह्यूमैनिटीज ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है दैट वन ईयर इट्स फेचिंग वेरी हाई मार्क्स, अनदर ईयर वेरी लो मार्क्स. मैथ्स ऑप्शनल में एटलीस्ट ये है कि कंसिस्टेंटली हाई स्कोर रहा है. बट इवन व्हेन आई लुक एट अदर इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स जो कि अगेन ऑब्जेक्टिव मार्किंग है बट उनमें भी आई हैव सीन फ्लक्चुएशंस, तो दैट मे नॉट ऑलवेज बी द केस. मैथ्स में फॉर्चुनेटली मार्किंग स्टेबल रही है. I think the biggest criteria should be number one, how scoring that optional is, and number two, the individual person's potential to score good marks in that optional. अब just because maths high scoring है does not mean someone who does not have a background in maths उसको वो optional लेना चाहिए. And stability of marking को भी एक criteria बनाया जा सकता है. कई बार humanities optionals का इस चक्कर में थोड़ा risk बढ़ जाता है and they do sometimes lose out due to this. So like in your UPSC journey, what do you think were unique aspects of your personality that aided your journey? I think the number one was prioritization. I realized by my second attempt itself that सब कुछ तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ छोड़ना ही है, but prioritize करना है. I used to tell myself, I used to write this down multiple times, prioritize ruthlessly. Because होता क्या है, हमें लगता है टाइम है, हमें लगता है देयर आर गुड 4-5 months, बट पता ही नहीं चलता है कब निकल जाता है. न्यू थिंग्स जस्ट कीप कमिंग अप. रिविजन में टाइम लगता है, मॉक टेस्ट में. सो प्रायोरिटाइजेशन, that attitude of prioritizing, not trying to do everything, that is the first thing I would say. Secondly, I think exam mindset also helped me. Having this attitude of maximizing on the day of the exam. Again, this is something I prepared myself mentally for beforehand, कि actual exam का दिन जब आ गया है तो ये नहीं सोचना है कि कितना पढ़ा है, क्या छूट गया, क्या नहीं किया. जितना भी आता है उसके थ्रू मैक्सिमाइज करना है. अगेन चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, I used to tell myself that even if a lot of questions come from my weak areas, तो भी if I can stay calm and try to do my best, तो शायद थोड़े मार्क्स हो जाए गेन. तो एग्जाम के वक्त एक मैक्सिमाइजिंग वाली स्पिरिट रखनी है. ये नहीं सोचना है कि क्या मैंने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, which I think to some extent did happen in my first attempt. एग्जाम के वक्त ही पैनिक करने लग गया, रिग्रेट भी होने लगी. बट उसके बाद I came up with this distinguishing How did you between the switch from preparation. that to that?
एक तो मैंने देखा कि आई विल स्विच माई स्टडिंग पैटर्न्स टू व्हाट वर्क्स वेल फॉर मी. So this is a bit, I think, a bit unrelated to what you exactly asked, but since we're on that note, नहीं, आई थिंक first attempt में मैंने. वेरी रिलेटेड टू हाँ. व्हाट आई आस्क्ड, Okay. बिकॉज लाइक तुमने स्विच कैसे किया, इतना जल्दी स्विच हाँ. कैसे किया, दोज आर द थिंग्स दैट आई वांट टू नो. कि मतलब see, Right. what I want to understand is कि in your strategy there are some things that are repeatable and there are some things that are not. Yes, absolutely. Right? Probably कि we could say that you're somebody who was disciplined to begin with. So you telling somebody कि भी discipline होना है, for you that's a natural state of being. For somebody who's not disciplined, they have to expend a lot of energy to get to that point where you exist. Right? So that is, I would say, repeatable, but like, more unique to you. On the other hand, there are the easier, more repeatable, like prioritization obviously is one of those things. Yes. And the quick switch that you're doing from like कि भाई पहले अटेम्प्ट में मेरे को बाद में जिटर्स हुए या ये प्रॉब्लम हुआ वो हुआ, उधर से तुमने स्विच कैसे किया वह सेकंड अटेम्प्ट में यू जस्ट लाइक कोल्ड कि भाई नहीं फर्क पड़ता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. I think, sir, it was the experience of the first attempt, the preparation part also, and the actual exam also, which was the most valuable. ये मैं अपने दोस्तों को भी बताता हूँ that experience इस एग्जाम में बहुत कुछ सिखाता है. First thing that I learned, sir, definitely पटका current लगता है affairs. तो सब समझ आता है. हाँ, yes, sir. So first thing that I learned from my first attempt was regarding current affairs itself, that हमेशा सभी स्टूडेंट्स, खासकर नए स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं वो करंट अफेयर्स की तरफ, एंड स्टैटिक को थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं. बट व्हेन आई कम टू माय स्टडिंग स्टाइल, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा थोड़ा रहता था कि एक्सेसिवली रिजिड रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करता था, टू ट्राई टू गिव वन टेस्ट एवरी डे, टू फिनिश टॉपिक्स वन बाय वन. सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने बस सोचा ही था कि अपनी सारी गलतियों पे वर्क करूंगा. आई एनालाइज एंड आई वेंट अराउंड विद इट, एंड नेचुरली इटरेटिव था. ऐसा नहीं था कि तुरंत ही मुझे पूरी विजडम आ गई कि क्या मैंने गलत किया, कैसे सुधारना है. So one change I made was that I did not have a very fixed rigid, ना तो मेरे पास एक फिक्स शेड्यूल था, ना मैंने टारगेट्स रखे. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई यूज्ड टू कीप टारगेट्स कि इस बुक को इतनी बार रिवाइज करना है, कम से कम इतने टेस्ट देने हैं. नाउ व्हाट आई लर्नड इज दैट प्लान्स कभी बनते हैं नहीं, प्लान्स कभी फॉलो होते हैं नहीं. एंड अदर थिंग इज, या तो मुझे हमेशा लगता था, इफ आई हैव केप्ट अ प्लान फॉर मी दैट 50 टेस्ट दूंगा, या तो मुझे लगता था दैट प्लान इज टू मच, फॉलो ही नहीं हो रहा है, या मुझे लगता था प्लान इज टू लिटिल, इतना सफिशिएंट नहीं. So for my second attempt, I just told myself, no targets. I will prioritize my efficiency पढ़ाई की, and I will keep some broad guidelines कि PYQs करने हैं, static को ज़्यादा focus करना है, prioritize करना है. Beyond that, I will keep it flexible. Whatever allows me to study more, that is what I'll do. अगर मुझे मन कर रहा है कि आज मैं टेस्ट दूं तो मैं आज टेस्ट दे दूंगा. अगर मुझे मन कर रहा है वीडियो लेक्चर देखूं तो वो देख लूंगा. बट एफिशिएंसी हैड टू बी प्रायोरिटाइज. अगेन दिस वाज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट कई बार बहुत ज्यादा थकान हो जाती थी एंड आई वाज नॉट एबल टू स्टडी एज मच एज आई वांटेड टू. बाकी एग्जाम डे की अगेन जो लर्निंग्स थी मेरी, डेफिनेटली आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में खासकर होता है दैट एग्जाम के वक्त पैनिक होता है काफी. इवन दो वी थिंक दैट नहीं होगा, बट वो एग्जाम हॉल में जाके पेपर जब खासकर डिफिकल्ट आए. So this is something that I prepared for beforehand in my second attempt. Number one was I tried to give a lot of offline mock tests. थोड़ा simulation हो जाए उस feeling का. Secondly, I mentally prepared myself. Exam hall के सुबह मैं अपने आप को ये बोलता था that you have to stay calm. हाँ. So number one thing is I think something I've learned in college in a psychology course about priming. तो mentally अपने आप को prime करता था that you have to stay calm. That there are some things that everyone knows and everyone must have heard somewhere, but अपने आप को remind करना important होता है. So things like if paper is tough, it is going to be difficult for everyone. ये चीज सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट आई थिंक उस मोमेंट में हम भूल जाते हैं. दूसरी चीज इज अबाउट हाउ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग काम. दैट अगेन सबको पता है दैट काम रहोगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, बट पैनिक जब शुरू होती है तो कंट्रोल में रहना मुश्किल हो जाता है. आई थिंक जस्ट कॉन्शियसली रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि एग्जाम के वक्त काम रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है, दैट इटसेल्फ हेल्प्स अ लॉट. दूसरी चीज है कि अगेन व्हाट आई टॉक्ड अबाउट सिमुलेटिंग दैट प्रेशर. ऑफलाइन मॉक टेस्ट मैंने दिए ही स्पेसिफिकली इसके लिए कि प्रेशर सिमुलेट करना है, चाहे वो मॉक टेस्ट लेवल डिफिकल्टी कुछ ज्यादा ही हो, आई डोंट केयर. आई एम गोइंग देयर टू सिमुलेट द प्रेशर. एक आदत बन जाए ताकि एग्जाम हॉल में कुछ बहुत नया ना लगे. अदर वाज जस्ट सेल्फ टॉक, अगेन रिपीटेडली टेलिंग माई सेल्फ दैट बहुत पढ़ा है, सब कुछ प्रैक्टिस भी किया है, मार्क्स भी आ रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, अपना बेस्ट करना है. एंड अगेन दैट थिंग व्हिच आई टोल्ड यू दैट एक्चुअल एग्जाम हॉल में आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई विल जस्ट फोकस ऑन डूइंग माई बेस्ट. कितना पढ़ा, कितना हो रहा है, वो नहीं. एग्जाम हॉल के उन 2 घंटे में सिर्फ ये फोकस करना है, हाउ कैन आई डू बेटर, हाउ कैन आई मैक्सिमाइज इन दोज 2 hours.
ये क्वेश्चन नहीं आया तो अगला क्वेश्चन कैसे करूं. सिंपल क्वेश्चन भी मिस हो गया, कोई बात नहीं. देर आर 100 क्वेश्चंस, देर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डू वेल. दिस इज अगेन, ये आई थिंक सारी चीजें थोड़ी क्लीशेड साउंड कर रही होंगी, But बट that's दे the डू thing. वर्क. I know, definitely they do work, and sort of these are the things that I tend to share all the time. कि यार बेसिक ही है, अपने आप को शांति में रखो, एंड आई थिंक प्राइमिंग इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. रिसेंटली एक मेंटर कॉल हो रहा था, उस पे द इंडिविजुअल वाज लाइक कि आई एम वेरी स्कैर्ड, आई एम वेरी एंग्शियस, क्या करूं कैसे करूं क्या. एंड लाइक आई सेड कि देखो, तुम पढ़ाई वढ़ाई पे अभी तो तुम कर रहे हो जो करते हो, कल से तुम रोज सवेरे उठ के शीशे में अपनी शक्ल देखो और अपने आप को बोलो कि भैया हाँ, कर रहे हैं, होगा. क्योंकि समटाइम्स इट्स जस्ट दैट रिमाइंडर, दैट एवरीडे थिंग. क्योंकि ऐसा नहीं है कि यू और मी आर सेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज नथिंग न्यू, दिस हैज बीन हियर फॉर 2000 years, 5000 years, सिंस लाइक रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज एग्जिस्टिंग. कि भैया हाँ, मतलब बेसिक चीजें वही है. लाइक इफ यू गो बैक टू मार्कस ऑरेलियस, like a Roman emperor, तो भाई मतलब he is talking about the same issues, राइट, जो आज आपके दिमाग में चल रहे हैं कि भैया वो बंदा आया, उसने दिमाग खा के चला गया, वो भी वही बात कर रहा है, तुम भी वही बात कर रहे हो. तो यार मतलब बेसिक चीजें तो वही है ना सारी. सो गो ऑन. एंड प्रीलिम्स में फिर लाइक सॉर्ट ऑफ लेट्स से कि अब जैसे लास्ट 30 days का या लास्ट 4 weeks का स्ट्रेच एक कुछ रह गया है, तो व्हाट शुड समबडी डू इन दिस 4 week, और व्हाट इज इट दैट यू वुड फोकस ऑन, प्रायोरिटाइजेशन का जो बेसिस है. एंड इसमें एक और माइनर साइड पॉइंट विच वाज कि व्हेन यू टॉक्ड अबाउट दैट प्रायोरिटाइज करना है, सब कुछ नहीं हो सकता, तो व्हाट डिड यू लीव? I think one thing I prioritized is the exam taking. So मैंने टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी अपनी आउटलाइन कर ली थी, again through mock tests only. वैसे I think it was before 4 weeks, but if someone hasn't done this, then they should definitely do this by now. एग्जाम हॉल के जो 2 घंटे हैं उसका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आपका क्लियर होना चाहिए, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए. तो मैं अपना भी शेयर कर देता हूँ. What I used to do is, what I again gained through experience of my mock tests. Number one, I had fixed in my mind that I will attempt all 100 questions. So this is naturally, this might sound even crazy, but ये मेरा mock test का experience था that when I was attempting all 100, I had slightly more marks. Maybe that तुक्के ज्यादा लग रहे हैं, या what I felt it gave me room to make mistakes. एक दो silly mistakes भी हो रही हैं, तो एक दो compensate भी हो जा रहे हैं. बट सो आई, थ्रू माई एक्सपीरियंस नाउ, नेचुरली नए पैटर्न में कुछ डिफरेंट हो सकता है 80-90 क्वेश्चंस का. हाउ मेनी डिड सेकंड यू थिंग इज अटेम्प्ट इन 2023? ऑल 100 सर. वो तो सोच के गया था तो करना ही था, बट नेचुरली देन मार्क्स भी उतने नहीं आए. हाँ, कितने सेकंड आए थे अटेम्प्ट इस में बार? आई हैड, इस बार 89 आए सर. सेकंड अटेम्प्ट में 125 थे, सो उससे काफी क्लियर ड्रॉप है. बट हाँ, सेकेंडली सर, पेपर अटेम्प्टिंग का था मेरा. वन हैवी राउंड में करूंगा, फॉर विच आई गिव अराउंड 70 to 80 minutes. इसमें आई वुड कवर ऑल 100 क्वेश्चंस. आई वुड एटलीस्ट रीड एवरी सिंगल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पढ़े बिना नहीं छोड़ता था. 30 seconds में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ट्राई करूंगा, अगर हो रहा है तो और टाइम दे दूंगा, नहीं हो रहा है तो आई वुड कीप इट फॉर लेटर. देन व्हाट आई वुड डू इज, 80 मिनट्स के बाद मैं ओएमआर में मार्क करता था, एंड उसके बाद आई वुड कम बैक टू डाउटफुल क्वेश्चंस. नाउ व्हाइल सॉल्विंग, I would mark it for every question. या तो I'm sure about this question, tentative या doubt. Now sure में the thing was, it's not that I'm sure of this being the correct answer, but I'm sure that मेरी तरफ से मैं यही mark करूंगा. Again, this was a learning from my first attempt where I felt that even the basic questions मैं doubt कर रहा था कि ये सही है या नहीं. तब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था, दैट वन क्वेश्चन एज सून एज आई सॉ आई वुड मार्क इट इन दी ओएमआर. तो ओएमआर में मार्क करने में मुझे डर लग जाता था, बार बार इवन सिंपलेस्ट क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करता था, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ. तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई ना, पहले मैं क्वेश्चन पेपर ही ऐसे सॉल्व करूंगा, रफ रफ जो स्पेस होता है वहां मैंने लिस्ट बना दी, श्योर टेंटेटिव डाउट का कर दिया, अकॉर्डिंगली फिर ओएमआर में मैंने मार्क किया. एंड अगेन पीपल कैन हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. आई थिंक वन अदर मेजर चेंज वाज दैट टाइम मैनेजमेंट का वॉच देखते रहना है, टाइम को नीटली फॉलो करना है. इस बार बहुत क्लियर था कि 80 मिनट्स इज द डेडलाइन फॉर फर्स्ट राउंड, तो अगेन 25 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में रीच हो जाने चाहिए, सो ऑन. Now, this was about test taking. दूसरी चीज, I think logical elimination is something that I do focus in the last few weeks. In fact, last week में मैंने काफी focus किया था. Now, the biggest thing about logical elimination is that you're not just supposed to watch videos on YouTube and hope कि अब exam में directly हो जाएगा. मतलब it's not a cheat code, even though some people do advertise it like cheat codes. I used to think of it more like mathematics. वीडियो देख के थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा, फिर खुद से समझने की कोशिश की, फिर बिना टाइम के पीवाईक्यूज पे सॉल्व किया, अप्लाई करने की कोशिश की, देन मॉक टेस्ट में टाइम प्रेशर में, बिकॉज तभी आप उसको अप्लाई कर पाओगे. अदरवाइज वही जो कॉमनली आप वीडियोस में कमेंट्स देखोगे कि ये चीज घर पे होती है, एग्जाम हॉल में नहीं होती,
प्रैक्टिस करने के थ्रू आप एग्जाम हॉल में भी कर पाओगे. हम्म. दिस इज द सेकंड थिंग, लॉजिकल एलिमिनेशन. नाउ प्रायोरिटाइजेशन ऑफ स्टैटिक. सेकंड अटेम्प्ट का मेरा ओवरऑल भी था एंड लास्ट के समय भी. पॉलिटी एंड इकोनॉमी स्ट्रांग होने, नॉट ओनली बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीस टू सब्जेक्ट्स, बट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल है, रिलेटिवली कंसेप्चुअल है. हिस्ट्री में या फिर किसी और सब्जेक्ट में वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है कि आपने जो एफर्ट दिया उससे प्रोपोर्शनल मार्क्स आएंगे. पॉलिटी इकोनॉमी में एटलीस्ट फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स ये थोड़ा ट्रेंड रहा है. एंड डेफिनेटली. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरे इसके बहुत सिंपल क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो ये रियलाइजेशन था. हम्म. आफ्टर दैट करंट अफेयर्स की बात करूं तो अगेन हॉरिजॉन्टल अप्रोच थी. तो एक तो न्यूज़पेपर व्हाट मैंने इज किए द थे. हॉरिजॉन्टल अप्रोच? हाँ, हॉरिजॉन्टल अप्रोच अगेन इज दैट नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा कवर करने हैं बट सरफेस लेवल करना है. पर टॉपिक हार्डली दो या तीन की फैक्ट्स, नॉट मोर देन दैट. एंड ये चीज जो ओवर टाइम मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था तो क्लैरिटी थोड़ी आई गई थी कि किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. अगेन आई थिंक बोलबूचिया पे शायद क्वेश्चन आया था. तो इवन व्हेन आई हैड स्टडीड इट आई हैड ओनली केप्ट वन थिंग इन माइंड, इट इज रिलेटेड टू व्हाट मलेरिया या डेंगू जो भी था. बट अगेन ज्यादा डेप्थ में नहीं गया, जो कि कहीं भी कोचिंग्स का मटेरियल जाए तो डेप्थ में जाती ही है. surface level approach and wider number of topics, this I think is important. Even though it's true that कई बार questions in depth आते हैं, but हमें अपने time के according prioritize करना है. And not only time, it's difficult to even memorize such so many facts for every single topic. उतना रिवाइज करने का भी टाइम नहीं होता है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. दैट्स ट्रू. तो हाँ, सो हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए व्हाट आई डिड, नंबर वन इज न्यूज़पेपर. दूसरा मैंने कोचिंग पीडीएफ कई सारे दो तीन मल्टीपल आई थिंक किए पर कौन टॉपिक. कौन से बट हैं? सर एक तो आई थिंक ओनली आईएएस का किया था. एंड शायद PD365 देखा होगा. बट द इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट वर्ड बाय वर्ड रीड बिल्कुल नहीं करता था, ग्लांस थ्रू करता था. जो टॉपिक मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट, आई थिंक या तो इंडेक्स से ही देख के या फिर स्क्रॉल थ्रू करके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा उसके भी बस की फैक्ट्स. तो ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देता था मैं इनको. स्टैटिक एंड मॉक टेस्ट पे ज्यादा टाइम देता था. वन अदर थिंग वाज करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब वीडियोस काफी सारे यूजफुल मिले मुझे. शुड आई टेक द नेम सर? प्लीज डू. तो आई थिंक वन इज टारगेट यूपीएससी, उनके वीडियोस काफी कंसाइज लगते थे. अदर इज दर्शन सोनिया सर आईएएस. ऑब्वियसली डज अ वेरी गुड जॉब ऑफ करंट अफेयर्स का, वो जो यस. कंपाइलेशन वीडियोस करते हो. हाँ. हम्म. सो वही सर बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से कराते थे. तो एंड इवन आईएएस बाबा का लास्ट में एक वीडियो आया था 4 घंटे का, हम्म. एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा लगा था. सो नेचुरली द मेन थिंग वाज दैट बहुत पिन पॉइंटेड की फैक्ट्स बता रहे हैं पर टॉपिक, एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा हो रहे हैं. अब ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से कि इसमें से क्वेश्चन आ ही जाएगा, बट दिस वाज गुड फॉर डेवलपिंग दैट कॉन्फिडेंस एंड कवरिंग करंट अफेयर्स ओवरऑल. हम्म. इसके अलावा नेचुरली पीवाईक्यूज तो करने ही है. लास्ट 4 to 5 वीक्स में काफी मैंने एम्फसाइज भी किया था. अगेन एक चैनल मुझे यूट्यूब पे मिला था, एड्यू टैब या सिविल्स टैब था. व्हाट दे हैव डन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उससे रिलेटेड टॉपिक्स को उन्हें पढ़ाया भी है. सो स्पेशली फॉर हिस्ट्री आई फाउंड इट टू बी वेरी यूजफुल. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हुए एंड वो टॉपिक्स जो रिपीटेडली आ रहे हैं वो भी रिवाइज हो गए. एंड वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में था तो थोड़ा इजी टू डू भी था. सो दिस इज अगेन वन थिंग दैट आई प्रायोरिटाइज्ड. अब इंडिविजुअल्स को कैसे करना है दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट दे हैव डन हाउ मच. अगर मॉक टेस्ट बहुत कम दिए हैं तो शायद ज्यादा देने हो, काफी दे दिए हैं तो रिवीजन ज्यादा करना हो. बट दीज आर सम थिंग्स दैट आई प्रायोरिटाइज्ड. I think that's a quite exhaustive sort of list and guidelines that you've given over here. I think it also comes from practice, given the fact that you've given a number of top talks by this point. But it's a very, very well put and very, very organized sort of, how would you say, list of ingredients that you've given to somebody. राइट. सो अब प्रीलिम्स का काफी हद तक ये हमने चीजें कवर कर ली हैं. अब इस पे मेंटल एस्पेक्ट पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि भाई लास्ट मोमेंट पे अब जैसे यहाँ पे स्ट्रेस होता है, थोड़ा एंग्जाइटी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल यू फेल्ड योर फर्स्ट प्रीलिम्स, तो लाइक सेकंड प्रीलिम्स में जाते हुए मतलब देयर इज दिस कांस्टेंट सेल्फ टॉक कि मतलब होगा नहीं होगा, क्या होगा, शुड आई स्किप दिस अटेम्प्ट. तो लाइक हाउ डिड यू डील विद दोस सॉर्ट्स ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स? सो सर डेफिनेटली होते हैं. आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल पीपल इज दैट सबको होता है. इवन इन माय सेकंड अटेम्प्ट where I scored 125 marks, just a week before that I was having very strong doubts. एक तो मेरे साथ क्या था दैट उस प्रीलिम्स के 2 या 3 हफ्ते पहले एक मॉक टेस्ट में मेरे सिर्फ 70 मार्क्स आए थे. तो बहुत मुझे पैनिक इंड्यूस हो गया था. एंड उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देना ही छोड़ दिया, इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी. बट अगेन दिस डाउट इज समथिंग दैट डज हैपन. इवन आफ्टर गेटिंग रैंक 87 जब मुझे थर्ड अटेम्प्ट देना था उसमें भी मुझे बहुत डाउट हो रहा था कि होगा या नहीं होगा. बट अगेन आई थिंक द डिस्टिंग्विशमेंट द डिसर्नमेंट कम्स दैट पढ़ाई हो गई है, अब फोकस करना है एग्जाम हॉल में जाके मैक्सिमाइज करने का. जितनी भी पढ़ाई हुई है
उसमें से एक्सट्रैक्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इट्स लाइक सेइंग दैट whatever tools you have in your arsenal, whatever knowledge you have, उसको यूटिलाइज करो जितना हो पाए. ये नहीं सोचना है कि क्या नहीं हो पाएगा, उसको सेपरेटली ही देखना है. पढ़ाई अलग है, एग्जाम हॉल में एग्जाम देना अलग है, और एंजाइटी अलग है. आई यूज्ड टू लिटरली टेल माई सेल्फ एंजाइटी बाद के लिए है, अभी एग्जाम हॉल में फोकस करना है एग्जाम. बट definitely सब फर्क तो पड़ता है. Even sleep gets affected because of that. So I think again being mentally prepared for all that anxiety, repeatedly talking to yourself and reminding yourself that everyone is feeling this way. Now the more important thing is to try to calm yourself. ये काफी important हो जाता है. So how did you try to calm yourself? मतलब जैसे So अब one thing, जो टेस्ट के बाद 70 मार्क्स पे तुम्हें लग रहा है कि भाई अभी होगा नहीं होगा क्या होगा, सो लाइक फ्रॉम देयर टू प्रीलिम्स डे व्हाट डिड यू डू? so one thing was that except for that 70 marks वाले टेस्ट, most टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे. इवन अभ्यास वगैरह में आई थिंक टॉप 50 रैंक भी आ गई थी, तो काफी कॉन्फिडेंस था ओवरऑल, एक्सेप्ट फॉर दैट लास्ट टेस्ट. वो तो टेस्ट ब्रॉडली कहाँ था? वो सर शंकर आईएएस का था, ओपन टेस्ट. आई थिंक दैट वाज टुवर्ड्स द एंड. बट एक तो ये नेचुरली कॉन्फिडेंस थी. सेकंड थिंग इज सेकंड अटेम्प्ट था. हैविंग जस्ट गिवन दैट वन अटेम्प्ट, एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. वो इट्स नॉट समथिंग अननोन टू यू, इट्स समथिंग यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. दैट डेफिनेटली हेल्प मी अलॉट. अगर यही प्रेप के साथ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होता तो इतने अच्छे तो नहीं आते डेफिनेटली. अदर थिंग इज अगेन जस्ट रिपीटेडली गोइंग थ्रू ऑल द बेसिक थिंग्स जो मैंने डिस्कस की, दैट एग्जाम हॉल में काम रहना है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब मैंने सॉर्ट कर ही लिया था. एंड चाहे टेंशन हो भी, एग्जाम हॉल में रिपीटेडली काम करना है अपने आप को, एंड बस फोकस करना है ऑन मैक्सिमाइजिंग. अब नेचुरली एम वाज आल्सो नॉट टू गेट सच हाई मार्क्स. एम वाज कि 90 to 100 भी आ जाए, बस होपफुली एग्जाम क्लियर हो जाए. And CSAT, because you're math optional, so I'm assuming that was never a problem for you. But if you had to give somebody some tips for CSAT, what would you say? Definitely, sir. I think many of my friends, some of my friends, even from maths optional, were not able to clear CSAT. Two things that I've learned from their experience. I think the major thing is about their overconfidence. Often people go with the preconceived mindset that या तो सिर्फ maths attempt करेंगे या सिर्फ comprehension. मैथ्स ऑप्शनल वाले या इवन आईआईटियंस इन जनरल को थोड़ा लगता है कि मैथ्स से सॉल्व हो जाएगा. उनको बट ईगो पे आ दैट जाता इज, है मुझे लगता है. हाँ, दैट इज अ वेरी फ्लॉड अप्रोच कि मतलब 80 क्वेश्चंस है, ऐसा क्यों करना है कि सिर्फ मैथ्स अटेम्प्ट करो, कॉम्प्रिहेंशन नहीं. Yeah. सो and maths last 2 years has been very difficult. Even I can say that as maths optional student, I really पेपर के वक्त ही मुझे समझ गया था कि पेपर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, एंड कॉम्प्रिहेंशन कई बार इजी आ जाता है. 21 में आई फेल्ट इट वाज द ऑपोजिट. कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट था, मैथ्स वाज फेयरली इजी, रिलेटिवली इजी. तो ना तो मैथ्स हैवी जाना है ना कॉम्प्रिहेंशन हैवी. वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज दैट चाहे ओवरऑल कितना भी डिफिकल्ट हो, बोथ मैथ्स एंड कॉम्प्रिहेंशन या whichever sections, आई थिंक रीजनिंग को भी अलग माने, सब में कुछ ना कुछ इजी क्वेश्चन तो होते हैं, एंड सब में कुछ ना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं. तो ये नहीं करना है दैट ओनली मैथ्स या ओनली कॉम्प्रिहेंशन, इजी क्वेश्चंस को करना है. सेकेंड थिंग इज सर टाइम मैनेजमेंट. सीसैट में इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज मैथ्स क्वेश्चन में कब हम अटक जाते हैं, कब 7-8 मिनट निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है. सो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक जेई में भी होता ही था, मैथ्स ऑप्शनल में भी होता है, सीसैट में भी होता है. तो टाइम को देखते रहना है, किसी भी एक क्वेश्चन में नहीं फंसना है. अगेन बिकॉज 80 क्वेश्चन है एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज द सेम मार्क्स. चाहे क्वेश्चन, मेरे साथ तो मैथ्स में हुआ था दैट एक सिंपल क्वेश्चन था, इवन दो इट वाज सिंपल एंड आई न्यू हाउ टू सॉल्व इट, बट आई न्यू दैट इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 4-5 मिनट लगेंगे, तो आई जस्ट स्किप्ड इट एंड आई वेंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बाद में आई डोंट रिमेंबर टाइम मिला या नहीं. बट अगेन किसी भी एक क्वेश्चन पे नहीं अटकना है. दैट इज वेरी क्लियरली दैट इज अ ट्रैप, एंड लोग इसमें फंसते ही फंसते हैं. मैं भी कई बार फंसा हूँ जेई वगैरह में भी, बट दिस इज अ ट्रैप. टाइम देखते रहना है, किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है. आई थिंक दीज टू आर द बिगेस्ट थिंग्स, बिगेस्ट मिस्टेक्स. उसके अलावा वन मोर थिंग सर इज दैट चाहे किसी ने सीसा के लिए प्रिपेयर ना भी किया हो, मे बी एज सच नहीं करता था, बट एग्जाम को फुल सीरियसनेस कर देता था, एज इफ दिस इज ऑल्सो द मार्क्स आर गोइंग टू बी काउंटेड, या फिर दिस इज क्वालिफाइंग की तरह नहीं ट्रीट करता था कि सिर्फ 66 लाने हैं, मैक्सिमाइज ही करता था. इवन दिस टाइम आई गॉट अराउंड 150 मार्क्स, एंड इवन टिल द लास्ट मिनट आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट. तो एग्जाम के 2 घंटे तो अपना बेस्ट देना ही है, ना सुबह के टेस्ट की टेंशन लेनी है, ना हल्की सी भी कॉम्प्लेसेंसी आनी है. So I think this is something also that I have been pondering and contemplating recently, that there should be a willingness to fight. Like even if you feel the fight is lost. Yes. भी मतलब डूबते जहाज पे भी कोशिश तो करो, मतलब कुछ तो करो. हाथ पैर नहीं मारोगे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बचने का है. तो a lot of people, because in the last couple of years it has so happened that GS1 का पेपर suddenly एकदम surprising हो जाता है, they don't even show up for CSAT.
भाई अटेम्प्ट तो काउंट हो ही गया है, दे ही दो। इफ नथिंग प्रैक्टिस ही है, अगर एक और अटेम्प्ट आगे देने का सोच ही रहे हो तो व्हाई नॉट। तो आई फील, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कि मतलब ये जो एक वो विलिंगनेस टू फाइट कि भाई मतलब इवन इफ यू फील कि भाई हार गए थक गए जो भी है, लाइक लड़ना है फुल एनर्जी के साथ। Definitely, sir. And I would say this is even more important for mains, हम्म but prelims में भी अगेन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ दोज 2 hours. तो हम्म उन 2 घंटे अपनी जान लगा देनी चाहिए हम्म विदाउट लूजिंग कंपोजर. या प्रीलिम्स में ऐसा है कि कामनेस भी रहनी है. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जोश आ गया फिर वो सिली मिस्टेक्स की भी टेंडेंसी हो जाती है. डेफिनेटली। बट डेफिनेटली हैविंग दैट fighting spirit is very very important. Right, so thank you, Ayan, for your contributions, and we'll continue post prelims for the mains wala. So we'll end this one Thank here. you so much.